Hello guys, welcome or welcome back to my channel. I am Muskan and I hope you all are safe and doing great. So if you're watching my video for the first time, please take a moment to subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon for my videos prior notification. So guys, वीडियो का thumbnail and title देख के आपको पता चल गया होगा वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है. So recently I've received a lot of text regarding my salary. People are asking that how much you earn, that can you please tell me your salary, that how much you get per month. So guys, before starting this video, I just wanted to mention one thing, that I can't tell you my salary because I'm still every time in every video, whenever I come live, a lot of people ask me this question and I always answer that I can't tell you about my salary, that how much I earn every month, because I'm still working with the airline. And yeah, so that's why, and it's kind of confidential, so that's why I always share that on what basis we get our salary. Again, today I'm going to make a video on the same topic so that जितने भी लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है वो ये वीडियो देख सके एंड उन्हें पता चल सके that on what basis a cabin crew gets their salary. So if you are new to my channel, make sure that you subscribe, hit the bell icon, and here's my Instagram handle. Please go and follow me there. So without any further delay, let's get started. Okay guys, so cabin crew salary is something which is not fixed. Every month cabin crew gets their different salary. It all depends on your flying hours, sector allowance, that how many sectors you are doing in a month, how many uh what do we say, hours you are doing in a month. So it all depends on your hours, sector. Okay, so the first thing, the first part of a cabin crew salary is your basic salary, which is different in every airline. Every airline provide different basic salary to their crew. So let's take an example. Suppose the basic salary is 20,000, which is fixed, which you are going to get per month for sure. So it's your basic salary. Like every airline give different. Some airline give 5,000, some give 15, some give 25, some give 30, and some give more than that also. So it all depends that in which airline you are working. अभी आई ऑल्सो डोंट नो कि कौन सी एयरलाइन कितना देती है, बट मुझे इतना पता है कि बहुत सी एयरलाइन है जो कम देती हैं. एंड मैं नेम नहीं लूँगी, सो आप लोग को मैं एक एग्जांपल ही दे रही हूँ. सो ये पहली चीज़ होती है आपकी बेसिक सैलरी, जो कि फिक्स्ड है एंड हर मंथ आपको मिलेगी ही मिलेगी. नाउ इसमें अब हम ऐड ऑन करेंगे योर रेंट अलाउंस. सो हर एयरलाइन आपको रेंट अलाउंस भी देती है. मेरी कंपनी मुझे रेंट अलाउंस देती है. तो व्हाट इज़ दिस रेंट अलाउंस? सो रेंट अलाउंस समथिंग, जब आप कहीं, सपोज आपको हर टाइम ज़रूरी नहीं है कि आप जिस जगह से आते हो आपको वहीं पे बेस मिलेगा. जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग हैं जो यू नो छोटे शहर से आते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल, जयपुर हो गया, जम्मू हो गया, जहाँ पे बेसेस नहीं होते हैं, जहाँ पे एयरलाइन अपने बेस नहीं खोलती है. सो उन सब लोगों को क्या करना पड़ता है, उन्हें जहाँ पे एयरलाइन बेस देती है वहाँ पे आके उनका खुद का घर लेके रहना पड़ता है. एंड अभी मैं एक और चीज़ क्लियर कर देती हूँ, एयरलाइन आपको घर कुछ दिनों के लिए देती है, लाइक आपको होटल प्रोवाइड कर देती है आप जब कहीं नई जगह जाते हो. अदरवाइज उसके बाद आपको खुद के पैसों पे ही रहना पड़ता है. सो उसमें से कुछ रेंट अलाउंस होता है जो एयरलाइन आपको प्रोवाइड करती है. सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, 6,000 7,000 तक का रेंट अलाउंस आपको मिलता है. एंड दैट्स समथिंग, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका रेंट 20,000 है तो एयरलाइन आपको 20,000 देगी, ऐसा नहीं है. जो भी फिक्स रेंट अलाउंस कंपनी का होता है वो आपकी सैलरी में ऐड ऑन होके आता है. सो दैट्स द सेकेंड थिंग विच कम्स इन योर सैलरी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्लाइंग आवर्स. सो फ्लाइंग आवर्स इज समथिंग विच यू गेट फॉर पर आवर. सो जब आप फ्लाई करते हो, लाइक इट्स नॉट कि आपने जिस दिन से अपना काम शुरू किया है, मतलब अगर आप 12 बजे से घर से निकले हो तो पर घंटे का आपको, ऐसा नहीं होता है. जितने देर आप एयर में रहते हो आपकी फ्लाइंग चल रही होती है, जितने, सपोज़ कई कई फ़्लाइट होती है 3 घंटे की, एक रूट है, सपोज़ दिल्ली से गुवाहाटी हम ले लेते हो, कई बार 3 घंटे लग जाता है. सो पर आवर्स के हिसाब से एयरलाइन आपको कुछ अमाउंट देती है. लेट्स टेक एन एग्जांपल, कुछ एयरलाइन 100 देती है, कोई एयरलाइन 200 देती है. एंड आपके पोजीशंस के भी बेसिस पे होता है. सपोज़ अभी कैबिन क्रू अगर आप हो तो उसके पे आपका सबसे कम कैबिन क्रू का होता है, देन उससे ज़्यादा सीनियर कैबिन क्रू का होता है, एंड देन उससे ज़्यादा जो भी पोस्ट होती है उनके होते हैं. सो ये होता है आपका फ्लाइंग आवर्स. सो आपने पूरे मंथ में जितने घंटे फ्लाई किया है
उसको सपोज़ अगर आपको कंपनी 200 दे रही है, तो अगर आपने पूरे मंथ में 80 आवर्स फ्लाई किया है, तो आप 80 आवर्स को 200 से इंटू कर दो एंड जो भी आता है वो आपकी सैलरी में इंक्लूड होके आपको मिल जाता है। Now, the next things which comes in your salary is your sector allowance. So now the question comes in everyone's mind that what is this sector allowance? So sector allowance is something, suppose आपने दिल्ली से मुंबई फ्लाई किया, so जो आपने दिल्ली से मुंबई फ्लाई किया है वो आपका एक सेक्टर होता है। फिर मुंबई से आप गोवा गए, वो आपका दूसरा सेक्टर है। फिर गोवा से आप वापस दिल्ली आए, दैट इज़ योर थर्ड सेक्टर। सो डिपेंड करता है। हाँ, अब बहुत लोग मुझसे पूछते हैं आप एक दिन में कितना कर सकते हो, एक दिन में कितना कर सकते हो। तो ये हम पे डिपेंड नहीं होता है, या आपको एयरलाइन खुद ही रोस्टर बना के देती है। कई एयरलाइन मतलब एक दिन में 6 भी रहता है, किसी का 2 रहता है, किसी का 1 रहता है, किसी का 4 रहता है। ऐसे डिपेंड रहता है, वो डिपेंड होता है कि एयरलाइन आपको देती है। सो सेक्टर अलाउंस इज समथिंग जिसका भी आपको अमाउंट फ्लाइंग आवर्स से ज़्यादा मिलता है। सपोज अगर आपको फ्लाइंग आवर्स 200 मिल रही है, तो सेक्टर अलाउंस आपको 350 या 400 मिलेगा। सो वही सेम चीज़ होती है। फिर आप अपने पूरे मंथ का सेक्टर काउंट करते हो कि आपने इस पूरे पूरे एक मंथ में कितने सेक्टर ऑपरेट किए हैं। एक दिन में जितने भी ऑपरेट किए वो सारे काउंट करते हो एंड देन यू मल्टीप्लाई वॉट एवर द अमाउंट इज एयरलाइन इज गिविंग यू, यू जस्ट कैलकुलेट इट ऑल टुगेदर एंड जो भी अमाउंट आता है वो आपकी सैलरी में इंक्लूड होकर आपको मिल जाता है। सो दैट्स द फोर्थ थिंग। नाउ कम्स योर ले ओवर अलाउंस। क्या होता है? सो जब आपको एयरलाइन कहीं पे ले ओवर देती है, अभी ये हर एयरलाइन में नहीं होता है कि आपको ले ओवर अलाउंस मिलेगा ही मिलेगा, एंड कई कई एयरलाइन में मिलता भी है। सो अगर आपको लेओवर मिलता है एंड आप इंडिया में लेओवर ले रहे हो, जहाँ पे भी आपको लेओवर, तो उसका कुछ पर्टिकुलर अमाउंट आपको एयरलाइन देती है। सो एयरलाइन डजेंट एयर एशिया एयरलाइन डजेंट प्रोवाइड लेओवर। सो मैं हमारे इसमें मैं आपको नहीं बता सकती हूँ कि कितना मिलता है कितना नहीं मिलता है, क्योंकि हमें जो लेओवर नहीं मिलता है इसी वजह से हमारी बेसिक सैलरी ज़्यादा है। तो मैं वो चीज़ अभी आपको नहीं बता सकती हूँ कि बाकी एयरलाइन कितना देती है, बट हाँ जितने लेओवर आपको मिलते हैं उसके हिसाब से आपको कुछ मिलते हैं, वो भी आपकी सैलरी में लास्ट में ऐड ऑन होके आता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग विच कम्स दैट इज़ योर बोनस इंसेंटिव एंड वी कैन से प्रोडक्टिव अलाउंस एज वेल। सो ये क्या चीज़ होती है? बोनस इंसेंटिव इज समथिंग कि आपका मंथली रिकॉर्ड कैसा रहा है। सपोज मंथली आपने पूरी फ्लाइट्स की हैं, कोई भी रिपोर्ट सिक नहीं किया है। रिपोर्ट सिक इज समथिंग जब आपकी तबीयत ख़राब होती है, आप फ्लाइट पे नहीं जाते हो, वो चीज़ आपने नहीं कही है, आपके अगेंस्ट कोई कंप्लेन नहीं आई है पैसेंजर की, आपका कोई रिकॉर्ड ख़राब नहीं रहा है, आपने कोई फ़्लाइट मिस नहीं की है। फ़्लाइट मिस इन द सेंस कि जब आप सोते रह जाते हो ना आपकी फ़्लाइट मिस हो जाती है। सो ऐसा कुछ भी अगर आपने नहीं किया, आपका रिकॉर्ड एकदम अच्छा है, देन आपको बोनस इंसेंटिव मिलता है। एंड वो भी हर एयरलाइन का डिफरेंट है। कोई एयरलाइन आपको 10,000 देती है, कोई 20 देती है। डिपेंड्स ऑन योर पोजीशन एज वेल कि आप कौन से पोजीशन पे काम कर रहे हो। सो ये चीज़ें होती हैं जो आपकी सैलरी में इंक्लूड होके आती हैं एंड आपकी मंथली सैलरी जो होती है। जब कोविड नहीं चल रहा था उस टाइम पे क्रू की मंथली सैलरी किसी की 80, किसी की 90, किसी की लाख तक भी टच होती थी। बट जब से कोविड आया है एवरीथिंग हैज़ चेंज बिकॉज सभी के सैलरी में डिडक्शन चल रहा है। अगर हम नॉर्मल 9 to 5 की जॉब की बात करें उसमें भी डिडक्शन चल रहा है एंड कैबिन क्रू की भी सैलरी में डिडक्शन चल रहा है, जो कि चलेगा ही अभी कुछ टाइम तो चलेगा। एंड ऑल्सो आई जस्ट वांटेड टू मेंशन वन थिंग कि जो अभी फ्रेशर्स हैं जिन लोगों को अभी सेलेक्ट किया जा रहा है, द थिंग इज़ दैट उनको अभी जो सैलरी मिलेगी दैट्स नॉट द एक्चुअल सैलरी विच अ कैबिन क्रू, इट इज़ नॉट दैट सैलरी विच अ कैबिन क्रू यूज टू गेट, इट्स मोर देन दैट। सो अभी आप लोगों को जो सैलरी मिल रहा है इट्स जस्ट बिकॉज यू आर फ्रेशर एंड यू आर विलिंग टू वर्क एज अ कैबिन क्रू, सो दैट्स वाई। तो आपकी जो हो सकता है कि आपके जो फ्लाइंग आवर्स हैं, आपका जो बेसिक है वो बाकी क्रू के जिनके पास एक्सपीरियंस है उनसे कम भी हो सकता है, बट इट्स ओके गाइज, यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी दैट आपको काम करने का एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सो डोंट मिस दैट कि सैलरी कम है या ऐसा कुछ है, जस्ट गो विद इट बिकॉज अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा देन ओनली आप अपने को आगे प्रमोट कर पाओगे। सो ये होती इन बेसिस पे आपकी सैलरी आती है गाइस। तो मैंने सारी चीज़ें इन डिटेल शेयर कर दिया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि किस बेसिस पे आपकी सैलरी एक कैबिन क्रू की सैलरी उन्हें मिलती है।
So yeah, that's all for I today. Hope you guys like this video and find this video helpful and informative. If yes, then do like and share this video. Share it with your friends and family who wants to become cabin crew. And please do subscribe to my channel. Hit the bell icon, and here's my Instagram handle. Go and follow me there like you're supporting me on YouTube. Please support me on Instagram as well. Now I will see you guys in my next video. Till then, bye and take care. Bye bye.